नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मेहंदी रत्ता उत्कर्ष यूजीसी नेट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग आ चुके हैं यहाँ। यूजीसी नेट का आज एग्ज़ाम है 18 जून को और हम लोग सेंटर पे आ चुके हैं। बच्चों का पेपर छूटने ही वाला है। देखते हैं बच्चों के कैसे एग्ज़ाम्स हुए, पेपर का क्या हाल रहा। बहुत जल्दी एग्ज़ाम अभी छूटने ही वाला है और जैसे ही बच्चे बाहर आएंगे हम लोग एक बार बच्चों से पूछते हैं, देखते हैं कैसा रहा एग्ज़ाम। तो आइए चले मिलते हैं बच्चों से। क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक। हाँ। क्या सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। और मीडियम क्या है? इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश ही। इंग्लिश ही है। तो कैसा रहा? फर्स्ट अटेम्प्ट था ये आपका या पहले से पहले दे चुके आप? पहले दे चुका, मेरा नेट क्लियर है, लेकिन जेआरएफ अब जेआरएफ के लिए आए थे आप। तो पेपर को देख करके आपको क्या लगता है कि क्या ये पेपर बिना कोचिंग के सॉल्व किया जा सकता है, हल हो सकता है? हम लोग 30 से 40% कर सकते हैं बस। और पेपर 1 और पेपर 2 में से लेवल किसका ज़्यादा हार्ड था? मेरे को पेपर 1 का लगा। पेपर 1 का हार्ड लगा। क्या चीज़ हार्ड थी सबसे? DI सबसे हार्ड थी, कैलकुलेटिव थी, और बाकी रिसर्च टीचिंग वगैरह वो तो नॉर्मल आता है। अच्छा। हाउ वाज द पेपर? It was good. हाँ। I like better than offline, online. अच्छा, ऑफलाइन वाज बेटर। Right. एंड व्हाट्स योर नेम? Ankita. Ankita. What's your subject? It's literature, English. English literature. And was it your first attempt or second No, attempt? no, it's second attempt. Actually, I'm doing PhD. You're doing PhD, okay. What was more difficult, paper 1 or paper 2? One was difficult. This time, second was moderate. Which portion did you find the most difficult in paper 1? The mathematical portion, because I'm a literature student. Okay. So I found that was the difficult portion. All the best. What's your name? Radhika Mishra. राधिका मिश्रा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? Yes. और क्या सब्जेक्ट है आपका? Literature. इंग्लिश लिटरेचर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और पेपर 1 ज़्यादा हार्ड था या पेपर 2? Paper 1 was easy. and Paper 1 was 2 easy. quite a little bit. And which portion did you find the most difficult in paper 1? Maths. Maths was the most difficult, just because you're an English literature student. Yes. And do you think this paper can be solved without coaching? No, we need some kind of, Guidance. some guidance, yes. Okay, for okay. Sure. What's your name? Devangshri. देवांशी। क्या सब्जेक्ट है आपका बेटा? English. इंग्लिश लिटरेचर। एंड हाउ वाज द पेपर? Not so hard, moderate. मॉडरेट। एंड which portion did you find more difficult, paper 1 or paper 2? Paper 2. Paper 2 was more difficult. What about paper 1? Paper 1 was based on practical questions and general, like current affairs. Which portion did you find the most difficult in paper 1? Which was based on current affairs, like questions of SWAYAM and higher education related. अच्छा, that was more difficult. And have you heard of Utkarsh UGC Net channel? Yes. Yes, you have heard. Did you find it helpful? Yeah, It was helpful? Very good. Would you be recommending Utkarsh UGC Net classes to more students? yeah, obviously. Obviously. It has better classes. It has better classes. Very good. And what is your recommendation to new students? Gain knowledge randomly, like there's no particular book for net. Acha. And obviously go through coachings if you need help. There's no shame in attending. And what in your opinion would be the cutoff, a tentative cutoff, what you think would be in English literature? Just your guess. Maybe 290, 280. 280, 290 Yes, I guess. out of 300. Yes, I guess. 280, 90%. Yes, because students have really prepared well. Like I have seen my friends and also. Okay. All the best बेटा। क्या सब्जेक्ट है भागचंद आपका? इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर। अरे वाह, तो ये आपका पहला अटेम्प्ट था? ये मेरा एमए के बाद में जो एमए अभी कंप्लीट हुआ है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ये सेकेंड अटेम्प्ट है। अच्छा, कैसा रहा पेपर? पेपर मैं एवरेज ही कहूँगा। अच्छा। और जो फर्स्ट पार्ट की मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, बाकी जिन्होंने तैयारी की उनके लिए इजी है पेपर। तो आपने फर्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन क्यों नहीं करी? क्योंकि मेरा एमए जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। क्या नाम है आपका? शिवानी। और क्या सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश लिटरेचर। और मैम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट अटेम्प्ट? ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क लगा आपको? क्योंकि सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते थे अब तक, अब ऑफलाइन पहली बार हुआ। पहली बार हुआ है, अच्छा हाँ। हुआ था। अच्छा। हाँ, मतलब टाइम मिल गया तो बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व करने की। अच्छा, टाइम मिला आपको। OMR शीट का कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं नहीं, कोई ऐसी टाइम की प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आई? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। व्यवस्था अच्छी थी। और दूसरी बात, पेपर 1 में आपको कौन सा पोर्शन सबसे डिफिकल्ट लगा? डिफिकल्ट तो ऐसा कुछ नहीं था, पढ़ाई करिए तो इजी था सब। पढ़ाई करिए आपने? हाँ, करिए। तो क्या इस पेपर को देख के आपको लगता है कि बिना कोचिंग के ये पेपर सॉल्व किया जा सकता है? बहुत करा जा सकता है सेल्फ स्टडी के बेस पे। अरे वाह, आपने उत्कर्ष UGC नेट चैनल का नाम सुना है? हाँ देखिए कभी क्लासेस? हाँ, देखिए।
देखिए कैसी हैं वो क्लासेस? मतलब ऐसे वैसे तो नहीं देखी मैंने, अच्छा। पर नाम बहुत सुंदर था। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश लिटरेचर। और इस पेपर को देख करके क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फ़र्क लगा? सर ऑफलाइन ज़्यादा सही रहता ऑफलाइन ज़्यादा इजी था। क्या ओएमआर शीट का मतलब फ़र्क था या क्या ओएमआर से टाइम मिला भरने को? है। हाँ ओएमआर मिलने का टाइम भी मिला, पेपर हाँ। भी पढ़ने में सही रहा। वो क्या आइज़ में दिक्कत आती है ऑनलाइन। अच्छा अच्छा। ऑफलाइन आराम से दिखता रहता है तो अपने और हिसाब से पढ़ लो। ये बताओ कि पेपर 1 का लेवल इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था? मीडियम था। मीडियम था। मीडियम। और कौन सा पोर्शन सबसे डिफ़िकल्ट लगा पेपर 1 का? पेपर वन में सर मुझे तो मैथ्स थोड़ी वीक है तो डीआई ज़्यादा लगा। डीआई बाकी सबसे मुश्किल लगा। मुश्किल लगा। और पेपर 2 का लेवल कैसा था? पेपर 2 का लेवल इजी था सर, अगर Easy पढ़ा है था। ना तो हाँ। मतलब इजीली निकलेगा। तो आपको क्या लगता है कि लगभग कट ऑफ कितनी जानी चाहिए इंग्लिश लिटरेचर की? सर ऐसे तो अंदाज़ा आपके हिसाब से कितना होना चाहिए पेपर देखने के बाद? इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा नहीं सकते? लगा, क्योंकि ये पेपर आपका easy में सेकंड था। अटेम्प्ट है? नहीं सर फर्स्ट अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलो ऑल द बेस्ट।